بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہمارا لیکچر 23 ہے، جس کے اندر ہم آئٹماز ڈیڈکشن جب ہم کلیم کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک امپورٹنٹ ڈیڈکشن ہوتی ہے جس سے ہم ریفنڈ کلیم کرتے ہیں۔ اور جب آپ کسی کا ٹیکس پریپیئر کریں تو اس کو آپ کی والی ڈیڈکشن ملا سکتے ہیں، اور اس سے آپ کا کلائنٹ بہت زیادہ ریفنڈ کو کلیم کر سکتا ہے۔ الٹیمیٹلی آپ کا کلائنٹ آپ کی سروسز سے سیٹسفائی ہو سکتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ارن انکم کریڈٹ۔ ارن انکم کریڈٹ شارٹ میں EIC۔ اچھا دیکھیں، ارن انکم کریڈٹ ہوتا کیا ہے؟ ان انکم کریڈٹ یہ ہوتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو لوگ ان امپلائڈ ہوتے ہیں نا، جن کے پاس جابس نہیں ہوتی، تو گورنمنٹ ان کو، جو وہ لوگ جو جاب کر رہے ہیں، وہ لوگ ان لوگوں کو سپورٹ کر وہ لوگ ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اور کرنا پڑتی ہے تھرو سوشل سیکورٹی فنڈ کے۔ تو ان کا برڈن، اکانومی کا بہت زیادہ برڈن جو ہے ان لوگوں پہ آ جاتا ہے جو جاب نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ان کو اولڈ ایج بینیفٹ ملتے ہیں سوشل سیکیورٹی کے تھرو۔ تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ گورنمنٹ انکریج کرتی ہے کہ جو لوگ کچھ نہ کچھ کام کریں، تو ہم ان کو انکریج کرنے کے لیے ٹیکس بینیفٹ دیتی ہیں، ایون کے ریفنڈ دیتے ہیں، تاکہ وہ لوگ کچھ نہ کچھ کام کریں اور موٹیویٹ ہوں، اور ان کو ریفنڈ کی صورت میں پیسے ملتے ہیں۔ تو اس میں سے ایک چیز یہ ہوتی ہے ارنڈ انکم کریڈٹ۔ اچھا، ارنڈ انکم کریڈٹ ہے کیا؟ دا ارنڈ انکم کریڈٹ EIC's money the US government give to people who work۔ ان کو ہی ملتا ہے جنہوں نے کام کیے، بٹ ارن a low اور moderate income، جو لو اور moderate income کماتے ہیں، ٹھیک ہے؟ It's help reduce tax or give refund even if you don't owe any tax۔ نہ صرف یہ آپ کے ٹیکس کو ریڈیوس کرتا ہے، ایون کہ اگر آپ کوئی ٹیکس او نہیں کرتے تب بھی یہ آپ کو ریفنڈ کی صورت میں مل جاتا ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے۔ فور ایگزامپل، اف یو ورک پارٹ ٹائم اینڈ ارن 20,000 ان 2025، آپ کام کرتے ہیں اور آپ پورے سال میں 2025 میں آپ نے جو ارن کیا ہے تھرو اپنی ورکنگ کے، وہ $20,000 ہے۔ یو could get money back like small bonus from IRS۔ تو IRS آپ کو بولتی ہے ہاں آپ نے کم ارن کیا ہے ایک سرٹین لمٹ سے جو IRS نے ڈیفائن کی ہوئی ہے، تو ہم آپ کو ریفنڈ آپ کے اکاؤنٹ میں دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ کس طرح سے ہوتا ہے میں آپ اچھا، پرپس کیا ہے ان انکم کریڈٹ کا؟ گورنمنٹ کریٹ EIC ٹو ہیلپ ورکنگ فیملی اینڈ ریڈیوس دیئر پاورٹی، تاکہ ان کی پاورٹی ریڈیوس ہو، ٹو انکریج پیپل ٹو ورک اینڈ ہیلپ فیملی پے فار ڈیلی نیڈس، ٹھیک ہے؟ اچھا ایگزامپل، ایک سنگل موم ہے، سنگل موم ورکنگ فل ٹائم۔ اچھا، سنگل موم کیا ہوتی ہے؟ وہ عورت جو اپنے، اس کا فادر نہیں ہے اور وہ اپنے بچے کو پال رہی ہے، وہ سنگل موم کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو a single mom working full time at a grocery store can get an income credit to help with rent, food and school expense۔ تو وہ ان انکم کریڈٹ گورنمنٹ سے حاصل کر سکتی ہے رینٹ پے کرنے کے لیے، فوڈ، گروسری، اور اپنے بچوں کی اسکول کی فیس کے لیے۔ کلیئر ہے؟ تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک ٹیکسی فیسلٹی ہوتی ہے، اور اپنے سٹیزن آف کنٹریز کو ٹیکس میں ریفنڈ کی صورت میں۔ What is unencumbered credit? The unencumbered credit is a tax benefit that give money back to low and middle income worker. Even if you don't owe the tax, you can still get refund۔ اگر کوئی آپ ٹیکس آپ کا نہیں بھی بن رہا تو آپ کو وہ ریفنڈ کرتے ہیں۔ Example, you earn 30,000 and you owe 1,000، یعنی کہ آپ نے پورے سال 2025 کے اندر آپ کی ٹوٹل انکم جو آ رہی ہے وہ $30,000 آ رہی ہے، اور جب آپ کی ٹیکس کیلکولیشن ہوئی تو آپ کے اوپر بنتا ہے ٹیکس $1,000 کا۔ بٹ یور ان انکم کریڈٹ کینسل دیٹ 1,000
एंड गिव यू 2000 एक्स्ट्रा। यानी कि टोटल आपके डाटा की बेसिस पे जो आपका अर्न इनकम क्रेडिट बना है वो $3000 बना था, उसमें से 1000 तो जो आप पे टैक्स आ रहा था वो माइनस हो गया, और 2000 गवर्नमेंट ने आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया, ठीक है। अच्छा, मगर इसकी भी शर्तें हैं, ऐसे ही नहीं मिल सकता, ठीक है। वो क्वालिफाई क्या करेगा, गेट अर्न इनकम क्रेडिट, यू मस्ट हैव अर्न इनकम फ्रॉम जॉब और बिजनेस से, यानी कि तुम्हारे जॉब और बिजनेस से कोई ना कोई होनी चाहिए, जो जॉब करते हो जहां पर टिप हो सकती है, वेजेस हो सकती है, बिजनेस की इनकम हो सकती है। एक तो ये यू मस्ट हैव सोशल सिक्योरिटी नंबर, आपके पास उनका आईडी कार्ड, सोशल सिक्योरिटी नंबर होना चाहिए। बी अ यूएस सिटीजन और रेजिडेंट, आप यूएस सिटीजन या रेजिडेंट होना जरूरी है, ठीक है। नॉट फाइल फॉर्म टू, अच्छा, नॉट फाइल फॉर्म, अच्छा, इनके आपको पता है यूएस के तमाम फॉर्म जो हैं वो नंबर्स की सूरत में है, तो ये जो ये फॉर्म है 2555, ये फॉरेन इनकम के लिए होती है। आपने कहीं फॉरेन में आउट ऑफ कंट्री इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वहां से जो इनकम आती है वो इस फॉर्म के थ्रू फाइल होती है, तो ये एक शर्त है कि आपने ये वाला फॉर्म फाइल नहीं किया हो। क्लियर है बात, क्योंकि कोई आपकी जब आपकी जब बाहर से इनकम आ रही है यानी कि आप पुअर नहीं है और आपको गवर्नमेंट के टैक्स रिलीफ की जरूरत नहीं है तो गवर्नमेंट इसको एक्सक्लूड कर देती। क्लियर है, अगर आपकी कोई बाहर से इनकम आती है, उन्होंने चेक किया आपने ये फॉर्म सबमिट किया हुआ है, दैट मीन्स आप गुड इनफ अमीर हो, तो आपको गवर्नमेंट इसकी फैसिलिटी नहीं ऑफर करेगी। मीट द इनकम लिमिट, और जो भी उनकी आईआरएस की इनकम लिमिट है वो तुम मीट करते हो, ठीक है। ये आप आईआरएस की साइट पे दे सकते हैं, मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सप्लेन, इफ यू हैव टू किड्स, अगर आपके पास दो बच्चे हैं, एंड अर्न लेस देन $53,000 इन 2025, और आपकी टोटल सालाना इनकम $53,000 से कम है 2025 में, तो यू लाइकली क्वालिफाई, तो आप लाइकली क्वालिफाई करते हैं। अब कितना करते हैं वो आगे हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकम लिमिट फॉर 2025, अच्छा जी, हेयर इज अ लिमिट है हमारी। देखो, अगर कोई भी बच्चा नहीं है तो डेफिनेटली खर्चे भी कम होंगे, तो गवर्नमेंट उसको कम बेनिफिट देती है। नो चाइल्ड, अप टू, पूरे साल की इनकम आपकी $18,000 है तो, और कोई बच्चा भी नहीं है तो आपको अर्न इनकम क्रेडिट मिलेगा $632, ठीक है। अगर वन चाइल्ड है और अप टू 47,000, यहाँ आपकी लिमिट कितनी है, $47,000 आपने पूरे साल में कमाए तो आपका क्रेडिट मिलेगा 3995। जैसे ही एक बच्चा बढ़ा तो टैक्स क्रेडिट भी बढ़ गया और इनकम की लिमिट भी बढ़ गई क्योंकि उसके खर्चे बढ़ेंगे। अगर आपके दो बच्चे हैं तो आपकी टैक्स लिमिट है, आप पूरे साल में 53,000 तक कमाते भी हो, ठीक है, दो बच्चों को संभाल लो तो आपको 6,604 $6,000 तक का अन इनकम क्रेडिट मिल सकता है। अच्छा, और अगर 3+ चाइल्ड हैं तो आपकी 59,000 है इनकम और क्रेडिट, तो आपका कितना है, 7,830 आपका इनकम टैक्स रिटर्न बन सकता है। देखो, ये आपको क्लाइंट को बताना पड़ेगा, आप उसको जब इतना सादा अगर उसके बच्चे हैं उसको रिटर्न मिल रहे हैं तो और तो हम कैलकुलेट करेंगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, ये आईटी मास डिडक्शन की तरफ जाएंगे कि भाई आपको ये मिल सकता है, आपके तीन बच्चे हैं, उनका आपके पास ये रिक्वायरमेंट पूरी है, उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर है, वो यूएस के सिटीजन भी हैं, आपके साथ रहते भी हैं, तो आप फिर इसके लिए जाओगे, आप उसको एजुकेट करोगे, ठीक है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में बिफोर अप्लाइंग अपेयर दिस W2 होना चाहिए, जिससे आपकी इनकम पता चलेगी, पूरे W2 में पूरे साल की इनकम होती है। इसके अलावा 1099 फॉर्म क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होता है। 1099 फॉर्म उसको मिलता है जो आपका परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसको मिलता है। तो ये दोनों प्रूफ ऑफ इनकम होगा, सोशल सिक्योरिटी कार्ड की जरूरत होगी, इफ यू इफ यू एंड योर किड्स दोनों का आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए, लाइक यूटिलिटी बिल आपको चाहिए होगा, बर्थ सर्टिफिकेट जिससे एज का अंदाजा हो। टिप, कीप ऑल पेपर टुगेदर इन वन फोल्डर, आप एक जगह उसको रखेंगे,
जब आईआरएस आपसे मांगता है एट द टाइम ऑफ टैक्स रिटर्न का भी तो आपको ही हो गया। अब स्टेप वन क्या होगी, कलेक्ट योर इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग और प्रिपेयरिंग योर टैक्स डॉक्यूमेंट, एग्जाम्पल गेट योर W2 फ्रॉम योर एम्प्लॉयर एंड गैदर ऑल योर सोशल सिक्योरिटी नंबर जो आपके बच्चों के और आपके हैं। और इसमें मिस्टेक आपको नहीं करनी है कि कोई नाम के अंदर या इसके अंदर मिस्टेक हो। स्टेप टू में आप कैलकुलेट करेंगे रिटर्न एज अ टैक्स प्रिपेयर के एक बच्चे पे, दो बच्चों पे, तीन बच्चों पे कितना बनता है, यूज वन। अच्छा, एक तो ये है कि आप फ्री टैक्स सॉफ्टवेयर भी हैं जो होते हैं, और टैक्स प्रिपेयरर जो हम लोग हैं हमारी हेल्प भी ले सकते हैं। बाकी आईआरएस की साइट पे भी जाके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जो है ना आईआरएस की साइट पे जाएं, वेबसाइट और वहाँ जाके ये आप लिखें EIC कैलकुलेटर। जब आप EIC कैलकुलेटर लिखेंगे तो वो उसके अंदर फिर आप डाटा इनपुट करते रहें, वो आपको जो है आंसर दे देगा। चले मैं EIC, अच्छा ठीक है। तो हमने क्या करा, अब ये देखें, इसको हम इसे स्क्रीन पे लाते हैं। ये EIC कैलकुलेटर लिखा 2025 का, इसे हमने खोल लिया IRS की वेबसाइट से। यहाँ आएंगे, जो IRS का लिंक है उस पे जाएंगे हम डायरेक्टली। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, ये IRS की साइट है, ये हमें बता रहा है ये EIC असिस्टेंट है, ये कैलकुलेटर है, इसमें हमको W2 1099 होता है। यूज दिस असिस्टेंट आपने दबाया कि अब ये स्टेप बताएगा आपको। आप किस्सा अभी इधर 25 का तो नहीं आया, जैसे ही हम अभी टैक्स सीजन स्टार्ट होगा 1 जनवरी से 25 का आ जाएगा। अब आप 25 पे लगाओगे, फिर फिर ये आपसे क्या पूछेगा, वेयर यूर यूएस सिटीजन रेजिडेंट इन 2024 है, अभी लास्ट ईयर तक का अपडेट है, 2025 आ जाएगा। आप कर देंगे हाँ जी, आपके पास इंफॉर्मेशन होगी फॉर्म के थ्रू। फिर डू यू हैव वैलिड सोशल सिक्योरिटी, यस, आपके पास सोशल सिक्योरिटी होगा। फिर क्या कहेगा, आर यू फाइलिंग 255, नो, क्योंकि फॉरेन इनकम अगर है तो रॉन्ग है। अच्छा, फिर ये कह रहा है विल समवन एल्स क्लेम यू एज अ डिपेंडेंट, अगर किसी और ने आपको जो है डिपेंडेंट क्लेम करेगा तो डेफिनेटली आप उसको नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा, तो हम बोलेंगे नहीं, किसी और ने इन बच्चों को डिपेंडेंट क्लेम नहीं किया। अच्छा, प्लीज सेलेक्ट एंड डिस्क्राइब द एज ऑफ, अब आप एज बताएं जो हमारी अंडर, ठीक है ना, तो हम बताएंगे उनको अंडर है 24 के। अगर डिपेंडेंट है, चाइल्ड है तो अंडर होने चाहिए, और अगर डिपेंडेंट है पेरेंट्स तो अब भी हो सकते हैं, ये हमने बताया। तो ये पहला हमने इसको फाइलिंग स्टेटस क्या है, ठीक है। सेकंड है फाइलिंग स्टेटस। फाइलिंग स्टेटस क्या है, अब यहाँ हम आ गए, अब फाइलिंग स्टेटस में हम उसको बताएंगे डू यू वांट टू फाइलिंग स्टेटस यूज फाइलिंग 2024 वाला, जो लास्ट ईयर वाला वो करना चाहते हो। यहाँ पर क्या लिखा है, ऑन दिस स्टेप यू विल आस्क अबाउट द प्लान फॉर द फाइल 2025 में। अब आप जो है फाइलिंग स्टेटस ऑल काइंड ऑफ मार्क एंड सबको आप रिक्वायर्ड करेंगे, तो देखें अब आप क्या करेंगे, फाइलिंग स्टेटस यस हम करेंगे। अब भी हमारे पास फाइलिंग स्टेटस आ गए, तो वो बोल रहे हैं आप हाउस होल्ड हैं, सिंगल हैं, क्वालिफाई, स्पाउस है, सर्वाइविंग है, मैरिड, फाइल्ड जॉइंट, जो भी आपका होगा एज पर डॉक्यूमेंट आप वो बता देंगे उनको। और फिर डिड यू सपोज हैव डिड यू सपोज हैज द प्रिंसिपल ऑफ रेजिडेंस फॉर लास्ट, यानी कि 4 मंथ वाला है कि मोर देन 6 मंथ आपके साथ रहा है, यस हमारे साथ है। वेयर यू, अगर वर यू लीगली सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू स्टेट लॉ, क्योंकि सम स्टेट लॉ का होता है कि आपको बताना होता है लीगली सेपरेटेड है, ऐसे नहीं कि हम दोनों अलग रह रहे हैं तो इस वजह से हमने एक दूसरे को हम सेपरेटेड तस्वीर कर रहे हैं, और मगर वो लीगल आइज में नहीं होता, आप कानूनी तौर पर हैं, क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट है। आप यस या नो में जवाब देंगे, ठीक है। ये और आपसे पूछ करेगा, डू यू हैव क्लेम
children other relative with the valid social security before the date of your return. वो क्या कह रहा है? Do you have to plan to claim children or other relative with the valid नहीं नहीं, हमें अब ये कोई हमारा प्लान नहीं है। तो ये क्या कह रहा है? You don't qualify। वो सारी जो आप ऑन द बेसिस डालेंगे ना, उसकी बेसिस पे कि हमने नो कर दिया था, हम नहीं कर रहे हैं, कि हमारे पास नहीं है, तो उसने कर दिया था कि हमने बोला नहीं नहीं, हम नहीं किसी को भी रिलेटिव वैलिड सोशल सिक्योरिटी के साथ एग्जाम्पशन हम कर रहे हैं, तो हमने नो किया, उसने हमें एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, ये आ गया। अब हमें उनको अपनी इनकम बतानी है। एजीआई क्या? एस्टिमेट योर ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम, अच्छा वेज सैलरी की इनकम हम इसमें इंक्लूड करेंगे, और अमाउंट बताएंगे कि भाई जो भी है, कि अगर हमारा फाइलिंग स्टेटस है, हम बताते हैं कि 20,000। तो ठीक है, 20,000 ये है। अच्छा, वर्क विद फेदर इनकम टैक्स न, न, अगर कुछ विदहेल्ड है तो वो बता दो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ग्रॉस इनकम है। डिसेबिलिटी इनकम हमको और कुछ भी नहीं है, हमारे पास एक ही इनकम है। ठीक है। सिलेक्ट इंटर एनी अदर टाइप ऑफ इनकम you had in 2024 income with multiple places। टैक्सेबल पोर्शन है? नहीं नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। इंश्योरेंस, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस नहीं हमारे पास। चलो हम बोल देते हैं 500 है। तो हम ज्यादा चीजें ये आपसे जो पूछेगा, हाँ, तो जितनी चीजें हम बता रहे हैं कि लोन की इनकम है, हम तमाम इनकम बतानी है सिवाय इन्वेस्टमेंट इनकम के। तो हमने उनको बता दिया भाई हमारे पास सिर्फ यही इनकम आती है। ठीक है, उसने उस आपसे वो तमाम के क्वालिफाइड एजुकेटर एक्सपेंस मिल रहा है, एलुमनी मिल रही है आपको, ये तमाम पूछ रहा है। ठीक है। अच्छा, ऐड ऐड नेम ऑप्शनल। वो बोल रहा भाई नेम ऑप्शनल है, तो हम नहीं डाल रहे, ऑप्शन है। द चाइल्ड विद देन द हाफ ऑफ द ईयर, हाँ हमारे साथ रहता था। अच्छा, ये क्या कह रहा है? कैन समवन क्लेम? नहीं। कह रहा है यस, हमारे साथ रिटर्न फाइल कर रहा है, क्लेम रिफंड। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है? फाइलिंग रिटर्न 20 ओनली क्लेम द रिफंड, ओनली फॉर रिफंड। हम बोल रहे हैं भाई वो ओनली। अच्छा, दिस चाइल्ड परमानेंटली डिसेबल, अब बस भी कर भाई, ये होने चाहिए। चलो सही है। वैलिड सोशल सिक्योरिटी, अब वो सोशल सिक्योरिटी ना पूछ ले। चाइल्ड क्वालिफाइड एट अनदर, तो ऐसे आपको बताता रहेगा ये कि ऑनलाइन। अब ये क्या कर रहा है? मैसेज है हाउ टू फाइल द ECTI। ऑनलाइन फॉर्म करना है आपको, अमेंडमेंट रिटर्न करना है, इन पर्सन करना है, ऑनलाइन। अगर हम अब यहाँ पर इसने सारा बता दिया कि भाई ये आपको ऑनलाइन मुझे इसको रिटर्न करना है, तो यहाँ से बता देगा क्वालिफाइड है। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये हमें प्रिंट दिखा देगा कि हमने यहाँ से लिया है, ये इसकी है। अच्छा, एक तो ये हम कहाँ थे? एक तो हम ये आ गया। ठीक है, हम वेबसाइट के थ्रू जाके कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्री टैक्स सॉफ्टवेयर के थ्रू जाके कर सकते हैं, और टैक्स प्रिपेरर की हेल्प ले सकते हैं। एग्जाम्पल, इंटर योर इनकम and number of child, it will show how much you can get, like 20,000, 2,000 और 5,000, कितना आपको मिल सकता है। स्टेप 3 में फिल द फॉर्म IRS 1040 फॉर्म, अटैच ECI शेड्यूल। अच्छा, अब ये ECI शेड्यूल क्या होता है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये होता है इसका फॉर्म। ठीक है, एक मिनट।
अच्छा ये फॉर्म है, इसके अंदर हम यहाँ नेम डाल लेते जो क्लेम कर रहा। ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर उनका सोशल सिक्योरिटी डाल दे, और यहाँ पर चेक का साइन लगा है। हम 3 बच्चे मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट नेम लिखेंगे, जो भी डिपेंडेंट चाइल्ड है, यहाँ लास्ट नेम, यहाँ फर्स्ट नेम, यहाँ लास्ट नेम, यहाँ फर्स्ट नेम, यहाँ लास्ट नेम, और फिर इसी तरह इसके यहाँ आएगा इनका सोशल सिक्योरिटी। पहले बच्चे का सोशल सिक्योरिटी यहाँ आएगा, दूसरे बच्चे का सोशल सिक्योरिटी यहाँ आएगा, तीसरे बच्चे का सोशल सिक्योरिटी यहाँ आएगा। फिर इसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखी जाएगी, और सिर्फ ईयर्स दिया जाएगा, ठीक है ना। फिर दूसरे बच्चे का यहाँ, तीसरे बच्चे का यहाँ, ठीक है। फिर यहाँ आएगा वॉज द चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 24 एट द एंड ऑफ द 24 के, ये 24 के अंडर होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ यस नो यस नो यस नो यस नो अलग अलग, इसके लिए यस करेंगे, हाँ 24 के अंदर है। ये डिपेंडेंट हो सकता है तो मोर देन हो सकता है, बट अगर चाइल्ड है तो होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है? देखो हम जब बच्चे को क्लेम कर रहे हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि वो 24 ईयर्स से अंडर हो, ठीक। अगर फुल टाइम स्टूडेंट भी है, वो जो क्वालिफाइंग चाइल्ड वाली रिक्वायरमेंट है। बट अगर क्वालिफाइंग रिलेटिव पे हम जाते हैं, तो क्वालिफाइंग रिलेटिव 65 और ओल्ड भी हो सकता है, और इसके अलावा भी हो सकता है अगर परमानेंट डिसेबिलिटी है, ठीक है। अच्छा फिर बी क्या है, वॉज द चाइल्ड परमानेंट एंड टोटली डिसेबल्ड ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ 2024, यस नो, तो उसमें तो कोई एज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपका उनसे रिलेशन क्या है, इसको यहाँ मेंशन कर देंगे। नंबर ऑफ मंथ चाइल्ड लिव विद यू इन यूनाइटेड स्टेट, ये इसका नंबर ऑफ मंथ, इसका नंबर ऑफ मंथ इतना है, क्योंकि मोर देन इन हाफ ईयर होता है, ठीक है। ये पर्पस एंड शेड्यूल, ये क्वालिफाइंग चाइल्ड है, यस जी हमारा क्वालिफाइंग चाइल्ड है सन। अब क्वालिफाइंग चाइल्ड कौन कौन हो सकते हैं, सन, डॉटर, स्टेप एलिजिबल, फॉस्टर चार, ये तमाम सही है। अगर इसका आंसर यस है तो हम यहाँ आ जाएंगे, अंडर द एज ऑफ 19 एट द एंड ऑफ 2024, और यंगर देन ये हो सकता है। और जॉइंट फाइनली होगा तो अंडर द एज ऑफ 2024 एट द एंड ऑफ द 2024, उसकी ये उम्र उन्होंने जॉइंटली फाइल कर रहा है, यहाँ पर भी यस। फिर उसके बाद फाइलिंग जॉइंट रिटर्न, हु इज नॉट फाइलिंग जॉइंट रिटर्न और इज फाइलिंग जॉइंट रिटर्न, तो जॉइंट रिटर्न फाइलिंग कर सकता है, वो पर्पस हो सकता है रिफंड के लिए करे। विच लिव विद यू, यूनाइटेड स्टेट्स में आपके साथ रहता है। तो ये फॉर्म नॉर्मली, इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सिंपल से उनके नाम डालना है, तो ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आपका आपके टैक्स फॉर्म के साथ अटैच होगा, ठीक है। तो यहाँ ही कह रहा है यूज IRS फॉर्म 1040 एंड अटैच शेड्यूल EI, जो अभी आपको बताया। बाकी 1040 फॉर्म तो मैंने देखा। फिल इन योर किड्स नेम, बर्थडे, सोशल सिक्योरिटी नंबर करेक्टली। एग्जाम्पल 1 फॉर्म 1040, देर इज अ लाइन फॉर द अन इनकम क्रेडिट, इंटर योर अमाउंट, ठीक है। अच्छा स्टेप 4 में रिव्यू करेंगे, चेक एवरीथिंग बिफोर सबमिटिंग योर एंट्रेंस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। आपका काम ही जो है ना सर, फॉर्म को प्रॉपरली फिल करना है, तो आप उसको प्रॉपरली फिल करके उसको रीचेक करेंगे, साइन करेंगे, करेक्ट इनकम इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन, साइन द रिटर्न, यूज ई फाइल फॉर द फास्टर रिफंड 2 to 3, ई फाइल करेंगे तो 2 से 3 वीक के अंदर पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। प्रिपेयर फाइलिंग टेक लॉन्गर, ई फाइलिंग इज बेटर, ठीक है। पेपर फाइलिंग जो है वो ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, और ये अच्छा अच्छा, ये एक सिनेरियो, मारिया है वर्क एज अ कैशियर एंड अर्न 35,000 2025 में उसने अर्न किए हैं। शी हैज 2 किड्स, उसके 2 बच्चे हैं। हर EIC अराउंड $5,800, दिस मीन मारिया डजन जस्ट अवॉइड टू पेइंग टैक्स, शी गेट मनी बैक इन देयर अकाउंट, ठीक है। हाउ रिफंड वर्क, आफ्टर यू फाइल द IRS checks your info and send the refund through डायरेक्ट डिपॉजिट, यू गेट दिस इवन यू डिडंट ओ एनी टैक्स, ठीक है। एग्जाम्पल, अच्छा यू क्वालिफाई फॉर 3,000 अन इनकम क्रेडिट, द IRS straight into your
अकाउंट, सारा गेम होता है इस पे। बाहर मुल्कों के अंदर वो बोलते हैं हम टैक्स पे नहीं होते, इसको बाय बैक पॉलिसी बोलती हैं, यानी कि जितना भी होगा ना, हम तुम्हारा पूरा टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, तुमसे कोई पैसे भी नहीं लेंगे। ये ब्लैक पीपल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं यूएस के अंदर, उसको बाय बैक बैंक प्रोडक्ट कहते हैं, कि हम ना तुमसे कुछ लेंगे और ना तुमको कुछ देंगे। ठीक है, जो टैक्स प्रिपेयरर है या टैक्स कंपनीज होती हैं, हम आपका सारा टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, मगर जो भी आएगा, जितना भी रिफंड बनेगा वो हम लेंगे जब आएगा। तो कुछ लोग हैं जो इस तरह से चले जाते हैं, मगर क्योंकि ये सीधा सीधा पैसा मिलने वाला सीन होता है उनके डायरेक्ट अकाउंट के अंदर। तो ये वो बता। अच्छा, कॉमन एरर क्या है? फिक्स रॉन्ग डिपेंडेंट इन इंफॉर्मेशन, डबल चेक नेम एंड एसएसएन नंबर। सोशल सिक्योरिटी नंबर को देख रहा है, रॉन्ग इनकम ऑलवेज यूज W2। W2 में इनकम क्या मेंशन है? मिस फाइलिंग डेडलाइन, फाइल बिफोर April 26, ऑलवेज यूज IRS 2025 वर्जन ऑफ फॉर्म। यानी नहीं, ऑलवेज नहीं होगा, जो भी होगा अकॉर्डिंगली करेक्ट फॉर्म को यूज करना है। प्रो टिप क्या है? फाइल अर्ली टू गेट योर रिफंड सूनर। तो बेहतर ये है कि ज़रूरी नहीं है आप उसको करें, आप पहले अर्ली फायर करें ताकि आपको रिफंड मिले। यूज़ IRS फ्री फाइल और रिलायबल सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर आपको रिलायबल यूज़ करना है। बहुत सारे लोग अभी बात चल रही है हमारी कि सॉफ्टवेयर बेच रहे होते हैं, कि सॉफ्टवेयर हल्के नहीं है ये ना, बहुत महंगे सॉफ्टवेयर है जो आपसे होते, तो फिर उसमें पैसे कैसे बचेंगे? तो मगर हम आपको ऐसे सॉफ्टवेयर बताएंगे, गवर्नमेंट बहुत सारे सॉफ्टवेयर फ्री में ऑफर कर रही है कि आप ये सॉफ्टवेयर यूज करें। अगर क्लाइंट की इनकम एक सर्टेन लेवल से नहीं हो तो फ्री सॉफ्टवेयर ही आप यूज करके कर सकते हैं, उसका कोई इतना इशू नहीं है। कीप ऑल द पेपर सेफ फॉर फ्यूचर रेफरेंस, और जितने भी टैक्स डॉक्यूमेंट हैं उसको आपको संभाल के रखना है, क्योंकि कभी भी अगर आपसे गवर्नमेंट मांगती है तो आप उसको दे सकें। आज द टैक्स पेपर इफ यू हैव unassures every dollar don't। अच्छा, समरी, समरी ये है कि सब्सक्राइब करें आप लोग चैनल को, अभी तक नहीं हुए, कम से कम 50 सब्सक्राइब चाहिए इस वीडियो पे ताकि हमारे 800 तक पहुंचे। ठीक है, ओके, ये हमारा रिटर्न है, रिवॉर्ड है। आई बिलीव कि आपको समझ में आती है बात है। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस वाले लेक्चर में इतना ही। फिर अब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ आएंगे और क्वालिफाइड बिजनेस इनकम डिस्कस करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। मगर आप लोग अपने पार्ट का जो पोर्शन है ना वो सही से नहीं प्ले कर रहे ना, कि वो मुझे बेनिफिट हो, सिर्फ ऐसे नहीं चलता। ठीक है, कि मैं अपने पार्ट का दे रहा हूँ, आप अपने पार्ट को बोल रहे हैं, जबकि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है सब्सक्राइब करना। ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके मोटिवेट करके बोल देना भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं यहाँ से टैक्स सीख रहा हूँ। उनको भी बोल देना कि आप तक किसी और के भी काम आए। मैं बट आई डोंट नो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, द अर्न इनकम क्रेडिट गिव यू एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम वर्किंग हार्ड। ठीक है, इफ यू क्वालिफाई, फाइल करेक्टली, क्लेम योर रिफंड। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर